Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we'll be continuing with the newspaper session, and today we'll be taking up the important articles of 15 June 2024. So the important topics of today, they include the NEP 2020, what are the major changes that it brought with regard to syllabus, etc., that might even create concern regarding the amount or the quality or the quantity of the knowledge that the students are attaining. Further, we also discuss about the voters. What are the political ideologies or what are the actual needs of the voters in today's times? Plus, we will be discussing about the various sports and how they are seeing more of congestion due to trade. Another important topic is regarding the global relations, the international relations of India with regard with other countries in the third tenure of the Mr. Modi government. Starting with the first topic, that is Kavli Prize. So, like the Nobel Prize in cutting edge fields of astrophysics, neuroscience, and nanoscience. So, Kavli Prize, it was a Norwegian American scientist. It was named after a Norwegian American scientist, businessman, and philanthropist who founded Kavliko in 1958. So this is majorly the Kavli Prize. So this is awarded in three areas majorly, that are astrophysics, nanoscience, and neuroscience. The largest, that is astrophysics, the smallest and the most complex, that is neuroscience. Further, we talk about SNAs. So यहाँ पे introduction की बात हो रही है, like this award that is given to Chad Mirkin. So Mirkin, they introduced the concept of spherical nucleic acid. So again, it is regarding nanoscience, and इसमें SNAs, they have a wide-ranging use in areas like intracellular detection, gene regulation, and immunotherapy. So that is why this price, it becomes important. Next, world container shipping rates keep rising amid port congestion. Now, inflation looks to be easing across the developed world, except for one glaring pocket of hot prices, that is regarding the cargo cost on the high seas. So this is mainly regarding the port congestion that is taking place. Now, important point here can be regarding Red Sea. Like, for example, nearly 6 months of regular attacks on vessels in the Red Sea, piracy incidents that we have been looking at, they have stretched the capacity in an industry responsible for moving about 80% of all the international good trade, disrupting the normal flow. So again, geopolitical tensions, they are somewhat leading to this here. When we talk about important ports in India, so Jawaharlal Nehru Port, then we have Tuticorin Port, Kolkata Port. These are all the major ports in India. Reimagining Indian federalism. Now, this article mainly highlights the challenges or the alleged challenges with the Indian federalism. For example, the increased intervention of center with regard to the devolution of funds. The second can be the interstate conflict with regard to the distribution of revenues, how it is taking place. For example, the poor states, they need more revenue, and due to this reason, what happens is that the richer states or the states who have much efficient policy implementation, they are somewhat facing the backlash here. So these are the major two challenges here.
So some important points here can be regarding Government of National Capital Territory of Delhi Act 2023, which again somewhat increases the autonomy of the center with regard to Delhi. Plus funds का allocation कैसे हो रहा है? For example, Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations, जो PM Cares Fund है, उसमें क्या क्या there are misuses that are being done, etc. Plus balancing our fiscal federalism. Now again, federalism is about powers, etc. as well, but more it is regarding the monetary aspect or the actual distribution of funds that takes place. तो यहाँ पर there is also regarding delimitation, that how the political situation or the political representation, it also affects the federalism in a particular way. For example, the states which have the same political party or the same ruling government as that of center, they might tend to see slightly a bit of inclination. The center might be slightly inclined with the devolution of funds in those specific states as compared to the other states, which again might be a cause of concern for the other states or the opposition ruled states. Here again, when we talk about the representation at the central level, we talk about the delimitation exercise. यानी कि जो constituencies होती हैं उनका change कर देना with respect to their populations. Now the general trend that has been seen is कि जो southern states हैं, there the population, it has significantly declined. They have been able to control the population, which is somewhat a good thing. But northern states में ऐसा नहीं है. And when the delimitation exercise or the new census, it will be taken, that is probably it should be taken in 2026. So then what will happen is more representation at the central level will be that of the northern states, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर होगी, जिसकी वजह से द central government, it will again be inclined towards the northern states, as that is alleged in this particular article. तो यहाँ पे 91st अमेंडमेंट की बात हो रही है, द इम्पेंडिंग लैप्स ऑफ 91st अमेंडमेंट. तो 91st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, उसमें इट वाज गारंटीड कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का शेयर है अक्रॉस द स्टेट्स, वो 1971 के सेंसस पर ही बेस्ड होगा, जैसे कि अभी तक चलता है. बट नाउ 2011 पे उसको शिफ्ट करने की बात करी गई थी इन 2017, एंड यहाँ पे नाउ न्यू सेंसस विल आल्सो बी टेकन. So it might be not a good news for the southern states due to the inadequate representation, due to the population aspect. Now, concerns of the southern states, again, they are regarding the disproportionate revenue का जो distribution हो रहा है between the worst performing states, etc. Further, when we talk about the Article 263 of the Constitution, तो इसमें भी एक rationale it has been outlined. It was conveyed that only in 1990s, on the recommendation of Sarkaria Commission. So again, it is regarding the interstate council कि उसको develop करना important है. Like after the abolition of planning commission, नीति आयोग का introduction हुआ था from 2017. तो अब इसकी वजह से there were also several changes because planning commission, it wasn't that efficient in managing the devolution of funds, etc. तो यहाँ पर एक इंटरस्टेट काउंसिल होना चाहिए जो कि बेटर ट्रैक कर सकता है ऑल दीज डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स. फर्दर और क्या क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट हियर. और एक डेवलपमेंट पाथ को क्रिएट करना, एंगेजिंग विद अदर स्टेट्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. तो यहाँ पे टू कीवर्ड्स, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दे बिकम इम्पोर्टेंट, which meant attracting investment और governance को भी improve करना, resisting the encroachment of the central government on the states' right.
तो यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी की बात हो रही है मेजर। चैलेंजेस नॉर्थ साउथ की तो डिबेट है, फिर डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग ही, फिर इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग द रेवेन्यू एलोकेशन। नेक्स्ट, India growth story has a beneficial ownership hurdle. Now, this article mainly tells regarding the foreign investment. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होती है, जो इंडिया की कंपनीज में होती है, उसमें एक मेजर चैलेंज है जो कि क्रिएट हो रहा है बाय द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019 नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रेस नोट नंबर 2020 से ये इम्पोज हुआ था कि एक सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट कर दिया गया है फॉर द इंडियन कंपनीज। इसमें क्या होता है, नेसेसिटी कर दिया गया है प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इन स्पेसिफिक केसेस, जैसे कि आइदर व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, या फिर जो बेनिफिशियल ओनर है ही और शी इज सिचुएटेड इन एनी ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज। तो इसमें एक गवर्नमेंट अप्रूवल को नेसेसरी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, इफ दिस इज डन, कि दिस वाज डन इन द ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ताकि द पुअर कंडीशन और मे बी द डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस ऑफ द कंपनीज, उनकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज है दे डोंट गेट द बेनिफिट एंड दे डोंट स्टार्ट ओनिंग द कंपनीज फर्दर, तो लॉस में न जाए, इसलिए दिस गवर्नमेंट अप्रूवल वाज नीडेड। बट हियर द चैलेंजेस के बहुत ज्यादा पेंडेंसी के केसेस है, रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, जिसकी वजह से there is a shift seen now and ज्यादा investment it will not be promoted due to this। प्लस यहाँ पे सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक तो बेनिफिशियल ओनर्स जो टर्म यहाँ पे दी गई है कि हु एग्जैक्टली आर बेनिफिशियल ओनर्स, उनको डिफाइन करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म होना चाहिए with regard to the ambiguity that currently persists with regard to these foreign exchange management rules। और जो FEMA NDI akin to Indian competition law, they all should be amended to incorporate a time-bound consultation mechanism with the regulatory authorities। Uneducating our young। नेक्स्ट दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग एनईपी 2020। क्या इसमें मेजर चैलेंजेस है, क्या मेजर चेंजेस आए, तो एनईपी 2020 दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे पहले कितनी बार आ चुकी है, इट वाज इन 1968 और फिर 1986 में। दीज वर द टू मेजर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। करंटली 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक तो देयर इज अ क्रेडिट बेस्ड 8 सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें what will happen is on the basis of the time that is spent of the student in understanding, like class में कितने hours के लिए the student was present, even that will be counted so as to give them credits or marks। प्लस चेंजेस इन द सिलेबाई, सिलेबाई का रिफॉर्मेशन हुआ है बहुत ज्यादा, डिलीशन हुआ है सिलेबस का, एंड ऑल्सो वेरियस अमेंडमेंट्स विद रिगार्ड टू द स्पेसिफिक टॉपिक्स और द स्पेसिफिक इवन की टर्म्स, जैसे भारत इंडिया का डिस्प्यूट एक्सेट्रा with regard to key terms, all these were major changes with regard to syllabus specifically when we talk about। और NEP में even at the graduation level there have been changes that are made। For example, first year में it will be diploma, second year में it will be a certificate, first year में it will be a certificate course, second में it will be a diploma, third में it will be a graduation, and fourth year will be a research और internship based। तो इसमें 5+3+3+4 का एक सिस्टम क्रिएट करा गया है फॉर द whole education process। तो ग्रेजुएशन में जस्ट आई मेंशन्ड अबाउट द चेंजेस, तो ये किस लिए करे गए हैं, ताकि अगर ड्रॉप आउट करना पड़ जाए मिड में ही तो एटलीस्ट द पर्सन विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्वालिफिकेशन इन रिटन so as to be eligible for job or maybe even start new self business or something।
सो यहाँ पर स्पेसिफिक चैलेंजेस है रिगार्डिंग टू सिलेबस, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड विटमैन की एक पोम है पैसेज टू इंडिया। तो उसमें 255 लाइन्स है अक्रॉस 13 सेक्शंस, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 सेक्शंस ही रखे गए, बाकी सबको ओमिट कर दिया गया, ऑल द 9 सेक्शंस। तो यहाँ पे जो चीज ओमिट हुई है उसमें देयर इज अ पार्ट दैट इज इंक्लूडेड लाइंस कि पैसेज टू मोर देन इंडिया आर thy wings plumbed indeed for such far flights। तो इसमें क्या हो रहा है, देयर बाय इट इज आस्किंग द वेस्ट कि क्या वो रेडी है फॉर द विजडम ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे जब हम ओरिएंटलिज्म की हम बात करते हैं, या फिर वेस्ट डोमिनेंस की, या फिर वेस्ट एज द आइडियल वर्ल्ड, तो इसकी यहाँ पे बात हो रही है कि प्रमोटिंग आवर ओन कल्चर एंड बिलीविंग इन इट, जैसे कि संस्कृत और वेदास। तो these are the things that should be taught to students, but again ये omit कर दिया गया। Second major challenge जो बात हो रही है with regard to the diluting of the core content, it is regarding the honors का जो syllabus है। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिलेबस में इन द सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता, तो उसमें जो भी 7 to 8 सब्जेक्ट्स है, वो उन सब में से only one subject is specifically related to economics, that is introductory microeconomics। बाकी सब दे आर एलिमेंट्री और perhaps elective courses। तो यहाँ पे this is a kind of a challenge for the regarding to vivas etc, कि कैसे all these systems they can be revamped। तो again इसको डिजाइन करना it becomes very important, ताकि जो true purpose है हायर एजुकेशन का it still exists। Next, that is what India's voter is asking. Mission mode interventions or charismatic leadership will not cut it. So, this article mainly talks about the voters' behavior, or what are the actual needs of the voters. Okay, is it regarding the charismatic leadership, या फिर जो interventions the government की, या फिर what exactly is it that the voter needs? In short, the voter mainly needs a vision of a developed India. Okay, all the schemes, etc., they do help, but for example, instead of giving the cash, better jobs create karna, it is more important. Build toilets ko build karna is not that tough task, rather than creating running sewage systems। तो एक तरह से जो लॉन्ग टर्म एफिशिएंट और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एक तरह का सिस्टम होएगा इन द डिफरेंट सेक्टर्स, उसको क्रिएट करना विच रिक्वायर्स मोर टाइम एफिशिएंसी एंड आल्सो डेडिकेशन, दैट शुड बी द मेजर प्रायोरिटी और इज द मेजर प्रायोरिटी ऑफ वोटर्स, rather than the short term schemes or जो भी cash benefits etc which are given। They also play a good role in the temporary sustenance of the public, but in the long term, जो ये structural transformation है Indian economy का, that will be revamped and that will improve and actually lead to a better system। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मैक्स वेबर्स फ्रेज की भी यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इट रिक्वायर्स द स्लो बोरिंग ऑफ हार्ड बोर्ड्स। तो अगेन इट इज अ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट पूरा इसको रिवैम्प करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं, तो मेजर चैलेंज जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज क्लाइमेट डिपेंडेंट, इरेटिक रेनफॉल्स होती हैं। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में इतना ज्यादा कॉस्ट और टाइम भी जाता है। तो मेजर थिंग्स कैन बी वर्किंग ऑन द इरिगेशन सिस्टम, इस तरीके से उनको प्लॉट करना। प्लस फर्टिलाइजर एक्सेट्रा में जैसे कि ड्रोन दीदी का कंसेप्ट आ रहा है इन रिलेशन टू वुमेन एम्पावरमेंट। और ट्रांसपोर्ट के लिए बेटर एक कनेक्टिविटी हो सकती है ऑफ द विलेजेस विद द मेन सिटीज, या जहाँ पे एक्चुअल सेलिंग इट टेक्स प्लेस, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो दीज आर ऑल सच इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स विच विल टेक टाइम, बट अगेन इनका जो बेनिफिट होएगा दैट विल बी मोर लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग लास्टिंग and it will have a much better impact। So this is there in this article mainly।
No outcome in bond. Why money is key to climate action. So here it is a very important part for the climate change की जब हम बात करते हैं in the that is happening in the world. तो मेजर अगर हम causes की बात करते हैं कि why the climate it is changing or why the global warming it is taking place. So what happens is when sun it sheds its rays और जो sun की जो rays होती है फिर जो heat होती है जो earth को मिलती है it is bound to get reflected back in the space in the universe. But what happens is जो global warming हो रही है it is due to the heat that is getting trapped now in the on the surface of the earth. और ये क्यों हो रहा है? Due to the production of such gases जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा. तो ये सब जो गैसेस होती हैं दे हेल्प इन ट्रैपिंग दिस पर्टिकुलर हीट और ये वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती इन द स्पेस और परहैप्स दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये जो मेजर गैसेस हैं इन सब के प्रोडक्शन को ही जिसकी वजह से हीट इंक्रीज हो रही है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो इंक्रीज जैसे कि ज्यादा ठंड या फिर ज्यादा गर्मी वो इंक्रीज हो रहा है ऑन द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग दैट वी टर्म एज. अगेन इससे सी लेवल्स राइज होंगे मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स जो एक्चुअल फ्रेश वाटर है या फिर जो हम बोलते हैं क्रायोस्फीयर उसका जो शेयर है दैट विल बी डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस. तो दिस इज द मेजर कंसर्न हियर. प्लस जो एक्सट्रीमिटीज हैं या फिर जो अदर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स या फिर इवन साइक्लोन्स एक्सेट्रा ऑल दे ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अगेन इट चेंजेस विद रिगार्ड टू द ओशन करंट्स एटसेट्रा. और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऑल दीज करंट्स एटसेट्रा दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो. और इसी की वजह से जो ये साइक्लोन्स एटसेट्रा ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर विजिबल टू अस. अब अगर हम बात करते हैं कि मेजर जो एक टारगेट सेट हुआ था दैट इज ऑफ $100 बिलियन पर ईयर जो कि डेवलप्ड कंट्रीज देंगी टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम फाइट द क्लाइमेट चेंज. क्यों देंगी? बिकॉज ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज कि उसको मिटिगेट करना उसके इम्पैक्ट को. लेकिन डिफरेंशिएटेड क्यों है? बिकॉज जो पास्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है विद रिगार्ड टू द deterioration of the climate उसको उसमें तो contribution it is different of the developing and the developed countries. वो developed countries का ज्यादा contribution है इसीलिए they must have more input with regard to the monetary aspect ताकि वो developing countries को help कर सके in this particular task. तो यहाँ पे it was decided कि in the bond talks में यहाँ पे बात हो रही है जो कि जून में भी होना था कि उसमें एक इंडिकेटिव नंबर्स दिए जाए ताकि 2025 के बाद जो भी ये टारगेट होगा अगेन इट हैज टू इंक्रीज. ये $100 बिलियन नहीं रह सकता. तो इसी को ये डिसाइड करने के लिए जून में देयर वर टॉक्स दैट वर शेड्यूल्ड टू हैपन बट और ये होना था बिफोर COP29 जो कि अभी नवंबर में इट विल टेक प्लेस इन बकू अजरबैजान में. ये प्लेस है बकू. तो ये अभी नवंबर में इट विल टेक प्लेस दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29. तो नवंबर में इट विल टेक प्लेस एंड यहाँ पे फाइनल पॉइंट विल बी डिसाइडेड फाइनल जो भी कंट्रीब्यूशन देना या फिर द स्पेसिफिक टर्म इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर द पोस्ट 2025 पीरियड जिसको कि फाइनलाइज करना. तो उसी का ये काइंड ऑफ ड्राफ्ट या एस्टिमेट के लिए अभी बॉन्ड टॉक्स हुई थी इन जून बट अगेन कोई मेजर इनका आउटकम निकल कर नहीं आया. तो जब हम यूएनएफसीसी की बात करते हैं तो यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट आर्किटेक्चर एक सेट करा है इसके अंडर ही जिसमें ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज दे विल कंट्रीब्यूट. 2009 में ये प्रॉमिस हुआ था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो मोबिलाइज करेंगे $100 बिलियन एवरी ईयर 2020 के बाद से. डिसाइड कब हुआ था 2009 में एंड 20 के बाद से इट वाज सपोज टू बी गिवन बट
पहली बार कब हुआ ये टारगेट पूरा? इन 2022, यानी कि 2 सालों के बाद। एंड उसमें भी द कंट्रीज आर क्लेमिंग कि ये नहीं हुआ, या फिर इट इज जस्ट क्लेम टू बी, इट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। ओईसीडी की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का एक टारगेट है विच इज सपोज टू बी सेट नाउ। प्लस यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट की बात करते हैं तो डॉलर, इंडिया ने क्या प्रपोज करा है कि कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कम से कम आफ्टर 2025। और यूएनएफसीसी की बात करते हैं तो 2030 के बाद से उन्होंने $6 ट्रिलियन का एस्टिमेट दिया है कि इट शुड बी गिवन फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो 25 मेजर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, और फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन सबको प्रोवाइड करने के लिए। प्लस यहाँ पे देर आर ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स कि जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है विच आर लाइक एट द वर्ज ऑफ बीइंग कॉल्ड डेवलप्ड, जैसे कि चाइना, द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज, और अदर साउथ कोरिया, तो ये सब पार्ट नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज का, लाइक दैट आर मेंशन्ड इन द यूएनएफसीसी पेरिस एग्रीमेंट जो एनेक्सेस 2 है। तो उसमें भी ऑल दीज काइंड ऑफ कंट्रीज दे शुड बी इंक्लूडेड, ताकि ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो पाए और एक ईज क्रिएट हो पाए। Next, foreign policy or strategy से related, this is an article that is India and World in Modi 3.0. So since we know that this is Modi government's, Mr. Modi government's third tenure, like from 2024, it is now being started till 29. और पहले it was from 2019 to again 24, 23, और उससे पहले it was from 2014 to 1819। तो फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड में अगर हम बात करते हैं तो टॉप कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और सेचेलिस और मॉरिशस विच आर मेनली आइलैंड कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो बेटर जो रिलेशन जो है वो किन किन के साथ हो रहा है? मेजरली यूएस, यूरोप में स्पेशली विद फ्रांस, और नेदरलैंड्स के साथ भी देयर आर गुड टाइज। फिर हम जापान की बात कर सकते हैं एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज का है। प्लस चाइना में, चाइना का सेपरेटली वी कैन डिस्कस अबाउट इट, एंड ऑल्सो विद रिगार्ड टू रशिया, जहाँ पे के जो डिफेंस के जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर द डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और इवन फॉर द चीपर ऑयल। चाइना की बात करते हैं तो चाइना पे कैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इंडिया? तो इट इज मेनली रिगार्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया, या फिर इवन सेमीकंडक्टर स्पेसिफिकली हम बोलते हैं। वेस्ट एशिया में अगेन यूएई के साथ वेरी क्लोज टाइज, रिसेंटली जो एक टेम्पल भी क्रिएट हुआ था इन यूएई इटसेल्फ, और इंक्रीजिंग ट्रेड, ऑयल का जो ट्रेड है एक्सेट्रा, इट ऑल टेक्स प्लेस, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। Specifically talking about Pakistan, तो पाकिस्तान के ties they were still okay till 2014 and 15. Like there were still potential engagement ties that could have taken place. लेकिन 2016 में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे इन पठानकोट और उरी में, तो उसकी वजह से अगेन द रिलेशंस दे वर नॉट गुड। तो 2019 में पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक्स, अगेन इट फ्यूल्ड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म है जो कि वी कैन इवन राइट के न्यू दिल्ली की पॉलिसी क्या है फॉर द लास्ट 9 years टू काउंटर द पाकिस्तान बैक टेररिज्म। तो इसमें क्या है? इट इज टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो यानी कि फर्स्ट द टेरर हैज टू एंड, उसके बाद ही टॉक्स दे कैन टेक प्लेस। तो ये मेजर रिलेशन है ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। When we talk about Afghanistan or India, तो again when Taliban captured power in 2021, उसके बाद से लो लेवल एंगेजमेंट है। तो की टाइम यहाँ पे लो लेवल एंगेजमेंट होता है विद पाकिस्तान, कोई ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। विद म्यांमार अगेन जो जनता गवर्नमेंट है, जनता गवर्नमेंट और जो क्लैशेस हो रहे हैं, इंटरनल जो सिविल वॉर दैट इज टेकिंग प्लेस, रोहिंग्या रिफ्यूजीज की जब हम बात करते हैं
तो अगेन दैट इज अ कंसर्न है एंड द रिलेशंस दे आर नॉट गुड। मालदीव की जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजूई, तो अभी जो इंडिया आउट प्लान हुआ था कि जो फोर्सेस डिप्लॉयड थी इन मालदीव्स उनको वापस बुलाना चाहिए था। दैट वाज प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट मिजूई, तो दैट वाज अगेन डन। तो यहाँ पे एक रेडी टू एंगेज सिचुएशन है एंड द कंडीशंस ऑफ द रिलेशंस आर स्टिल ओके। बांग्लादेश में अगेन जो इन्फिल्ट्रेटर्स का रिमार्क था करंटली लाइक बाय द प्राइम मिनिस्टर कैंपेन रिटोरिक में, तो दैट माइट हैव tried to saw the ties, but apart from that एक common person purpose है बांग्लादेश एंड इंडिया एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को काउंटर करने का। भूटान में अगेन गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बॉर्डर कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल भूटान एंड नेपाल स्पेशली, क्योंकि दे आर इवन लाइक एट द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। So again, they become they act as a barrier, ये kind of एक fencing provide करते हैं to India, तो इसीलिए also the relation with them they become really important with नेपाल और भूटान। भूटान की अगर एक और स्पेसिफिक बात करें तो ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी कि जो मिटिगेशन के एफर्ट्स हैं वो जितना एमिट हो रहा है उससे बहुत ज्यादा है भूटान में, और ये फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री थी। So that becomes very important with regard to climate as well. A Galifor Mindfulness City project, we just talked regarding it. तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे गुजरात में हो रहा है गिफ्ट सिटी, सेम उसी से रिलेटेड ही है, लाइक लेइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। नेपाल की बात करते हैं तो अभी अगेन डेलिकेट चैलेंज है, बिकॉज लाइक इंडिया को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फुटप्रिंट है इन भूटान एंड नेपाल, तो इंडिया हैज टू बैलेंस इट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी हुआ था इन 2015। फर्दर श्रीलंका की बात करते हैं तो आइलैंड नेशंस जो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो चाइना की डेट पॉलिसी है विद दैट रिगार्ड, तो वहां पर इंडिया हेल्प श्रीलंका, तो इसकी वजह से गुडविल रिलेशंस है। बट एक ऑल्सो कच्चे दीव आइलैंड का जो इशू हुआ था विद रिगार्डिंग कि वो किसकी टेरिटरी में आएगा, तो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ इशू हियर। फिर सेचेलिस और मॉरिशस में अगलेगा आइलैंड्स और अजम्पशन आइलैंड, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट इज क्रिएटेड चैलेंज। आइलैंड कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं फिर स्पेसिफिकली इन द इंडियन ओशन रीजन जैसे मालदीव्स भी, तो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इंडिया कैन प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द चाइना की जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, और टू कैप्चर द इंडियन ओशन या फिर टू इंक्रीज इट्स inclusion in the intrusion in the Indian Ocean region, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन द पैसिफिक रीजन एज वेल। फिर रशिया की बात करते हैं तो अगेन डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और चीपर ऑयल्स की वजह से इट इज इम्पोर्टेंट, और वेस्ट एशिया आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये इंडिया को कनेक्ट करेगा विद यूरोप थ्रू मिडल ईस्ट, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। I2U2 अगेन India, Israel, UAE, major countries in this. Or further, we have international north-south transit corridor. So they are all sort to be the game changers. Next, Odia pride, cultural nationalism. Why Puri temple gates was BJP priority? So important temple here is Jagannath temple. It is located in Odisha. तो पुरी में ये लोकेटेड है, और यहाँ पर इसमें गेट्स की बात हो रही है कि देर आर मेजरली 4 गेट्स, बट उनमें से 3 गेट्स दे वर क्लोज, सिर्फ जो ईस्ट फेसिंग गेट है दैट इज सिंह द्वारा लायंस गेट, उसको ओपन करके रखा था। सिग्निफिकेंस क्या है कि मोक्ष और जो कामा है, प्लेजर है, धर्मा, राइट बिहेवियर, वेल्थ, ये सब इंट्रोड्यूस करता है ऑल दीज 4 गेट्स। तो 3 इनमें से बंद थे, तो उनको ओपन अभी करंटली करवाया जाएगा बाय द अगेन करंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इन ओडिशा। तो अगर हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे कि जगन्नाथपुरी में, तो देर आर सेवरल
developments that are done, जैसे कि अयोध्या में भी जो city it is created, तो economic development it will get a huge boost. और जगन्नाथपुरी में भी इसीलिए गेट्स बंद करवाए गए थे क्योंकि एक श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था, जिसमें अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, एक हेरिटेज कॉरिडोर अराउंड द टेम्पल, जो कि डिवोटीज के लिए अमेनिटीज को इंक्रीज करेगा. बट यहाँ पे मेजर अगर एक चैलेंज हम देखते हैं तो दैट इज रिगार्डिंग द रिहैबिलिटेशन या फिर जो रीलोकेट करना होता है ऑफ द स्मॉल शॉपकीपर्स या फिर जो साइड बिजनेस या मोनास्ट्रीज एक्सेट्रा विच आर लोकेटेड अराउंड द टेम्पल. तो उनको रीलोकेट करना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगेन इट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब कंसर्न्स एक्सेट्रा, बिकॉज ये भी बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इवन दे आर डिपेंडेंट अपॉन tourism and the devotees for economic well-being. Next, residents oppose allotment of flat under CM scheme to a Muslim woman in Gujarat. तो यहाँ पे it is a really unfortunate event and ये kind of एक social issue है कि कैसे रेजिडेंट्स ने अपोज करा कि एक जो मुस्लिम वुमन है सीएम स्कीम के अंदर उनको घर नहीं मिलना चाहिए इन द पर्टिकुलर एरिया और द लोकेलिटी सोसाइटी. तो यहाँ पे एक एक्ट मेंशन है दैट इज डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट. तो उसमें बैन कर रखा है सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी to those from another community without the prior approval of the district collector. So यहाँ पे this is included Disturbed Areas Act, so that becomes important. Again, ये social issue है and this should obviously not happen because again India is a secular country, everyone has the right, and all these uh, religiously strong sentiments, they must not impact someone's livelihood or someone's life unless something wrong is being done, of course. So thank you everyone for joining. That is all for today. I hope the session was fruitful and enjoyable as well. Thank you. We'll continue in the next session.